Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope you are fine and doing your studies. This is 19th lecture of your progressive English unit 4 sugar and spice. Same topic media techniques. Today we will complete this topic. Article that is on page number 96, 98, 96, 97 and 98. You have taught about this. Now open page number 99. Here is explanation. The word continuous text or continuous prose is the name given to a whole text made up of sentences organized into paragraph. Next explanation, the media. Media is the plural of the noun medium. We communicate with one another through the medium of speech. The news is communicated to us through the medium of newspapers, televisions, satellite and magazines. Newspapers, television, radio and magazines are known collectively as the media. These pages present you, the reader, with a great deal of information. If all this information were given in continuous text, it would be dense with facts and you would find it dull and difficult to digest. यानी अगर ये इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों को इस तरह कंटिन्यूस टेक्स्ट में दी जाती तो ये जो था ये बहुत ज़्यादा फैक्ट्स जो थे आप लोगों के इसमें ये आप लोग ऐसे फील डल और डिफ़िकल्ट फील करते इसको. Here are pictures and images. Now come on pictures and images. Heading is pictures and images. What is the effect on you of the picture on page number 87 of the boy eating the donuts? यानी कौन सा इफेक्ट पड़ा है जो पेज 89 पे आप लोगों ने पिक्चर देखी है कि एक लड़का जो है वो डोनट्स खा रहा है तो क्या इम्पेक्ट हुआ है. नेक्स्ट, हाउ डू द पिक्चर्स इन प्लेयर्स मेक द page more attractive to the reader? How do the pictures help to make it easier for you to take in information? यानी पिक्चर्स और इमेजेस ने क्या इम्पेक्ट आप पे क्या इम्पेक्ट इसका पड़ा है. यूज़ ऑफ कलर, आप लोगों ने देखा होगा कि डिफरेंट कलर्स यूज़ किए गए हैं इस आर्टिकल्स में. डिफरेंट पिक्चर्स, इमेजेस. नेक्स्ट ये है कि डिफरेंट कलर्स यूज़ किए गए हैं. हाउ डू द कलर्स मेक द पेजेस मोर अट्रैक्टिव टू द रीडर्स. यानी ये जो कलर्स होते हैं रीडर्स के लिए कितना अट्रैक्टिव हो जाते हैं, इसलिए ये कलर्स यूज़ किए जाते हैं. इन व्हाट वेज टू द कलर्स मेक द चार्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स easiest to read and interpret. Now come on page number 110. Here is different sizes. The font size is the name given to the size of the print which varies on these pages from very large to small. How many different font size can be find quote and one word written in each different font size? How have the editor used font size to show you the readers which are the important pieces of information? यानी डिफरेंट फॉन्ट साइज यूज़ किया गया है स्टूडेंट्स. फॉन्ट साइज लाइक हेडिंग और डिफरेंट स्टाइल से यूज़ किया जाता है रीडर्स की अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए. डिफरेंट फॉन्ट साइज जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं. Next word is bullet. Bullet points are usually small solid circle, but they can be of various design. In these pages they are
डायमंड शेप के होते हैं और डिफरेंट कलर्स के उसके होते हैं साइज़ के। लुक एट दी सेक्शन टाइटल ओबेसिटी का टाइटल आप लोग स्टूडेंट्स देखें, पेज नंबर 96। If continuous text with no bullet points were used in this section, how would the effect be different? यानी अगर ये बुलेट साइज ना यूज़ किया गया होता ओबेसिटी का इस तरह तो डिफरेंट इम्पैक्ट जो था वो नहीं पड़ता। तो इसलिए ये चीज़ें जो है अट्रैक्शन के लिए यूज़ की जाती हैं। व्हाट डू यू थिंक इज़ द फंक्शन ऑफ बुलेट पॉइंट्स? दिस वन इज़ बुलेट। नेक्स्ट इज डिफरेंट फॉन्ट्स, अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स। Font is the name given to different faces with include font which look like handwriting. अपर केस लेटर और कैपिटल, जिस तरह अपर केस लेटर जो होते हैं वो कैपिटल लेटर्स में होते हैं, लोअर केस लेटर्स आर स्मॉल वंस, लोअर जो होते हैं स्मॉल्स होते हैं। कंपेयर द फॉन्ट यूज्ड इन द हेडिंग। व्हाट इज़ शुगर में आप लोगों ने फॉन्ट को जो है वो देखें, कंपेयर करें, आप लोगों को समझ आ जाएगी। व्हाट डू यू थिंक इज़ द रीज़न फॉर यूजिंग कैपिटल लेटर्स? कैपिटल लेटर क्यों यूज़ किए जाते हैं स्टूडेंट्स? एक चीज़, जिस तरह एक टॉपिक होता है, ये टीचर आप लोगों को क्लास में भी वाइट बोर्ड पे लिखते हैं, इस तरह प्रोमिनेंट करने के लिए जो होता है उसको, और एक हेडिंग के लिए इसके लिए कैपिटल लेटर यूज़ किए जाते हैं। हेडिंग एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ हेडिंग एंड सब हेडिंग। Headings are eye-catching. Above you had an example of heading with a pun in it. Previous player is an example of another way of catching the reader's eyes. Heading where the words begin with the same letter. हेडिंग चूज़ की जाती हैं रीडर्स की आई यानी कैच करने के लिए, क्योंकि हमारी जो रीडर होता है ज़रूरी नहीं है कि हम लोग सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग हम लोग रीड करें, लेकिन ये जो हेडिंग्स होती हैं ये अट्रैक्ट करती हैं, हमारी नज़र जो होती है पहले हेडिंग्स पे पड़ती हैं। डायग्राम डिलाइट आर सिनिस्टर दी स्वीटनेस आर अल्टरनेटिव्स। हेडिंग फॉर previous players, think of two more alternative two word heading in which each word begins with the same sound. What do you think is the function of subheading? Students, आप लोगों के इसमें कि सब हेडिंग क्यों यूज़ की जाती है? हेडिंग होती है कि एक मेन जो टॉपिक होता है और उसमें उसके अंडर जो होते हैं बहुत से टॉपिक होते हैं, तो उनको सब टॉपिक कहते हैं। एक मेन हेडिंग होती है और एक सब हेडिंग होती है, यानी एक बिग जो पार्ट है एक उसके जो अंडर जो सब उसमें होते हैं छोटे छोटे जो टॉपिक्स होते हैं, उसमें उससे रेलिवेंट होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है, वो सब हेडिंग में आ जाती है। एंड लास्ट पॉइंट इज चार्ट्स, डायग्राम एंड स्टैटिस्टिक्स। चार्ट्स एंड डायग्राम्स प्रेजेंट समथिंग क्वाइट कम्प्लेक्स। चार्ट्स और डायग्राम जो होते हैं, स्टैटिस्टिक, ये ऐसी चीज़ों के लिए पेश किए जाते हैं जो कुछ क्वाइट कम्प्लेक्स, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं, डिफरेंट होती हैं। इंफॉर्मेशन विच कैन बी क्विकली अंडरस्टूड विद आ मिनिमम ऑफ वर्ड्स, यानी बहुत ज़्यादा लेंथी भी होती हैं, तो इनको इस तरह पेश किया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा जिस तरह एक अंडरस्टैंड भी हो जाए और मिनिमम ऑफ वर्ड, और उनके लिए कम मिनिमम वर्ड्स चूज़ किए जाते हैं। चार्ट्स एंड डायग्राम नीड टू बी इंटरप्रेटेड टू आंसर्स दीज क्वेश्चंस, इंटरप्रेट टू बुक्स, boxes, heading, pop, geos, the soda, obesity and tooth decay are examples of these. Which countries have the highest and lowest percentage of obesity? And next is how many cans of Dr. Proper soda pop could you drink in a day before you use the recommended maximum daily allowance of refined sugar? All of these points are used in this article. You will understand when you look these articles, and you have to read it again. You will understand all of these
points like pictures, images, use of colors, different colors use किए गए हैं. Next is different font size यूज़ किए गए हैं. बुलेट इस आर्टिकल में यूज़ किए गए हैं. हेडिंग एंड सब हेडिंग यूज़ की गई हैं. चार्ट्स, डायग्राम एंड स्टाइलिस्टिक्स. Students, your homework is also same. Read the all article and find out the picture, images, use of colors, different font size, bullet points, heading and subheading, chart diagram and stylistics. Next we will teach in next lecture. Inshallah. Take care, students. Allah Hafiz.